خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے 342ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ جماعت الصالحین کے سربراہ صاحبزادہ خالد سلطان کی جانب سے دربار پر حاضری دی گئی، 1400 چادریں بھی چڑھائی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، عمار یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمار، بتائیے گا۔ بالکل، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے 342ویں عرس کی تقریبات جو ہے وہ جاری ہے۔ آج جو ہے وہ دن بھر جہاں زائرین دربار سلطان باہو پر حاضری دیتے رہے ہیں تو وہیں صاحبزادگان بھی جو ہے وہ دربار سلطان باہو پر حاضری دیتے رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ صاحبزادہ پیر خالد سلطان ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور جماعت الصالحین کے سربراہ ہیں صاحبزادہ عابد سلطان کے ہمراہ جو ہے وہ دربار سلطان باہو پر آئے ہیں۔ یہاں پر ان کی جانب سے جو 1400 چادریں بھی چڑھائی گئی ہے، جبکہ 15 من جو ہے وہ پھول کی پتیاں مزار باہو پر نچھاور کی گئی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، آپ ہر سال کی طرح 1400 چادریں اس سال بھی چڑھائی ہیں، آپ نے 15 من پھول کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے ہمیشہ جو ہے وہ محبت، پیار اور امن کا درس دیا۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے کامل ولی عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے عرس کی تقریبات میں آپ لائیو دیکھ رہے ہو اور آپ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ آپ یہاں وہی آتے ہیں جن کے حاضری منظور ہوتی ہے۔ حضور سلطان العارفین نے اپنی زندگی میں محبت اور پیار کا درس دیا ہے، ہمیشہ معاف کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے، اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو عاجزی اور انکساری کا درس دیا ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی جو زندگی تھی وہ عاجزی سے عبارت تھی، اور آپ نے ساری لائف اللہ کی عبادت کی، ذکر الہی میں مشغول رہے، اور اس میں اللہ ذات کے ذکر میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نفرت سے کوئی بندہ لاٹ بھی مارتا ہے تو سلطان العارفین اس کو کہتے ہیں کہ تیرا پاؤں دکھا تو نہیں ہے، اگر دکھا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ تو وہ اتنا شرمسار ہوتا ہے کہ حضور کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ نہیں، غلطی میری ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو اگر بچھو کو اٹھاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بچا بھی لیتے ہیں، وہ پھر ڈستا ہے تو سلطان العارفین سلطان باہو اس کو بچاتے ہیں، اور ساتھ والا کہتا ہے کہ حضور یہ کیا ہے، وہ تو ڈس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈسنا اس کی ہے، عادت ہے، اور معاف کرنا اور بچانا میری عادت ہے، میں بھی اپنی عادت سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ سلطان العارفین کا فیض ہے، اور آپ نے پوری دنیا میں اس طریقہ کا فیض عطا کیا ہے کہ ہر آدمی آ کر حضور کے بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہوتا ہے اور فیض یاب ہوتا ہے۔ اس میں باہو کے حوالے سے بھی ہماری ناظرین کو باہو با ہا وا ہے، باہو کے 2 حرف ہیں اور الفاظ ہیں، ایک با ہے، با کا معنی ہے ساتھ، اور ہو کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس میں پاک ہے، اس میں 99 ناموں میں سے ایک ہو ہے، اور ہو کا ویسے معنی ہوتا ہے کچھ نہیں سوائے اللہ کے، ہو کا سما ہے۔ لیکن حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ پر احسان کیا کہ جس نے میرا نام باہو رکھا، جس کو سیدھا رکھو تو با خدا بنتا ہے، اور الٹا لکھو تو باہو وہاب بنتا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے ہمیشہ اللہ سے جوڑا ہے، اور میری زندگی اور میری آخرت بھی اللہ سے جڑی رہے گی، اور جو میرے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کی ذات پاک سے بھی جڑے گا، کیونکہ میں اس کے بازو سے پکڑ کے اس کو خدا بنا دوں گا۔ الحمدللہ سلطان العارفین کے اس اسم پاک کی اتنی برکت ہے کہ آپ جہاں بھی ذکر باہو کریں تو آٹومیٹکلی اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت والا اسم دیا ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی بے انتہا کرامات ہیں، لیکن ان کی جو سخاوت ہے اس وقت بھی مشہور تھی، اور آج بھی ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور جہاں بھی حضرت سلطان باہو کا نام آتا ہے وہاں لنگر بھی چلتے ہیں اور وہاں سخاوت بھی چلتی ہے۔
हज़रत सुल्तान बहू जो है वो उनके इसम मुबारक से ही ज़ाहिर होता कि बा का मतलब साथ होना और हू जो है वो इसमें बारी ताला है और बहू का मकसद यही है कि अल्लाह के साथ होना। आपने लोगों के दिलों को अल्लाह के साथ जोड़ा है और बहू का नाम हमेशा जो है वो दुनिया में इसी तरह। बहुत शुक्रिया अमार यासिर अपडेट करने के लिए। महकमा सुई गैस की जानिब से पाइपलाइनों पर मरम्मती कामों के लिए गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि गुलाम मोहम्मद आबाद गुलशन पार्क में अगले 24 घंटे गैस बंद रहेगी। इस्लामिया पार्क और चबा में भी आइंदा 24 घंटे गैस प्रेशर नहायत कम रहेगा। आपको बताते चले महकमा सुई गैस की जानिब से पाइपलाइनों पर मरम्मती कामों के लिए गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गुलाम मोहम्मद आबाद गुलशन पार्क में अगले 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। SNGPL हुकाम इस्लामिया पार्क और चबा में भी आइंदा 24 घंटे गैस का प्रेशर नहायत कम रहेगा। SNGPL हुकाम सार्फिन को एक तरफ लोड शेडिंग तो दूसरी जानब मरम्मती कामों के नाम पर बंदिश का सामना है। आपको बताते चलें गैस के बंदिश के हवाले से महकमा सुई गैस की जानिब से पाइपलाइनों पर मरम्मती कामों के लिए गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में गुलाम मोहम्मद आबाद गुलशन पार्क में अगले 24 घंटे के लिए गैस का सिलसिला बंद रहेगा। और अब आपको बताएं पंजाब काबीना की शाहजियाना की तहसील का दर्जा देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। मंजूरी के बाद जिला झांकी की 5 तहसीलें बन गई हैं। तहसील शाहजियाना को 5वीं तहसील का दर्जा मिल चुका है। जिला इंतजामिया ने तहसील में महकमों के दफातर के लिए सर्वे भी मुकम्मल कर लिया। आपको बताते चले एक बड़ी खबर के हवाले से पंजाब काबीना की शाहजियाना को तहसील का दर्जा देने की बाकायदा मंजूरी कर ली गई है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा शाहजियाना को तो तहसील बनाने की मंजूरी दे दी गई है, मजीद आगे क्या इकदाम किए जाएंगे? बिल्कुल, काबीना के 8वें इजलास में जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, उसमें अहम फैसला जो है वो खसूसी तौर पर जंग के लिए किया गया। जो बड़ी खबर की है जंग के लिए कि शाहजीना को तहसील का दर्जा देने की बाकायदा मंजूरी दी गई है। 5 तहसीलें बन चुकी हैं अब जिला जंग की, और इस हवाले से इससे कबल जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर पेपर वर्क जो है वो पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। तहसील में जो महकमे बनने हैं उनके दफातर के लिए सर्वे भी मुकम्मल किया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर तहसील में बनने वाले नए दफातर और उनकी मौजूदा सीटों और अखराजात का तखमीना भी लगाया जा चुका है। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर पेपर वर्क जो है वो इसे कबल ही भिजवा दिया गया था। करीबन के 18 के करीब जो है वो नए महकमे हैं जिस तहसील के अंदर जो है वो मुजवजा तौर पर बनाए जाने हैं, जिसमें पुलिस, महकमा सेहत, महकमा तालीम, हायर एजुकेशन और इसके अलावा जो है करीबन 18 महकमे हैं जिनके लिए सर्वे मुकम्मल किया गया है। और इस तहसील के जो अगर मिनट्स मीटिंग की जो है काबीना की मीटिंग है उसके मिनट्स जारी होने के बाद यकीनी तौर पर जो है इस पर तेज़ रफ्तारी के साथ काम मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बता रहे थे पंजाब काबीना की शाहजियाना को तहसील का दर्जा देने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी के बाद जिला झांकी की 5 तहसीलें बन चुकी हैं। तहसील शाहजियाना को 5वीं तहसील का दर्जा मिल चुका है। जिला इंतजामिया ने तहसील में महकमों के दफातर के लिए सर्वे भी मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर तहसील में बनने वाले नए दफातर की मुजव्वजा सीटों और अखराजात का तखमीना भी लगाया गया था। आपको एक बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब काबीना की शाहजियाना को तहसील का दर्जा देने की बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है। तहसील शाहजियाना को 5वीं तहसील का दर्जा मिल चुका है। मंजूरी के बाद जिला जंग की अब 5 तहसीलें बन चुकी हैं, जिसमें से शाहजियाना भी शामिल है। और अब आपको बताएं एनर्जी बहरान, मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का मामला। ताजिरों का हुकूमत से मार्केटें 8 की बजाय रात 9 बजे तक बंद करने का मुतालबा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा ताजिरों ने क्या मुतालबा किया है हुकूमत से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एनर्जी बहरान पर काबू पाने के हवाले से जो फैसला किया गया कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं और मार्केट्स जो हैं उस हवाले उनका भी टाइम टेबल दिया गया। और जो फैसलाबाद के ताजर हैं और पाकिस्तान भर के जो अंजमन ताजरान हैं उनकी जानिब से एक मुतालबा सामने आ रहा है कि जो मार्केट्स हैं ख़ास तौर पर 8 बाज़ार, उनकी टाइम टेबल जो है
वो 9 बजे तक किया जाए। हाजी असलम बली मेरे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी हाई साहब, बताइएगा क्या मुतालबात हैं टाइम टेबल को लेकर मार्केट्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। कल हमारी एक मीटिंग हुई है उधर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, जिसको चेयर कर रहे थे ख्वाजा आसिफ और खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक मलिक वगैरह। तो उनके साथ हमारा मुतालबा पाकिस्तान भर के ताजरों का तकरीबन यही था कि 1 घंटे का कम अज़ कम टाइम जो है उसको बढ़ाया जाए, 9 बजे तक मार्केटों को बंद करने का टाइम किया जाए और रेस्टोरेंट जो है उनको 11 बजे तक का टाइम दिया जाए। और मार्कीज़ वगैरह तो खैर पहले ही पाकिस्तान में पंजाब में 10 बजे बंद हो जाती हैं, अगर उस पर भी कोई नज़रसानी हो सके तो ज़रूर की जाए। एक मुतालबा और ताजरों की तरफ से बहुत शद्दोमत से सामने आया कि आप अपने अखराजात पर काबू पाएँ और जो ब्यूरोक्रेसी के और दूसरे तीसरे मामलात हैं उनको देखें और FBR की तरफ से जो स्मगलिंग के ऊपर काबू ना पाया जाना है उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि जो रेवेन्यू है ज़ाया हो रहा है और कस्टम ड्यूटी की मद में हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं हमें, वो आने चाहिए। इस चीज़ को फोकस करना चाहिए और सारा नज़ला ताजरों पर नहीं गिराना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अपने ख़र्चों पर कंट्रोल करें और इसके अलावा जो मुतालबा है ताजरों का कि मार्केटों का टाइम टेबल 1 घंटा मज़ीद बढ़ाया जाए, वो जो मुतालबा है वो ताजरों की जानिब से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से मुतालबात हैं वो भी किए जा रहे हैं कि इन पर ताजिरों ने हुकूमत से मार्केटें रात 8 की बजाय 9 बजे बंद करने का मुतालबा किया है। फजील अहमद आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील आपका। बिजली चोरी वाले 11 केवी फीडर्स खसारे का बाइस बनने लगे। बिजली चोरी वाले 11 केवी के फीडर्स के हवाले से वजारत पावर डिवीजन का अहम फैसला सामने आ गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली चोरी वाले फीडर को प्राइवेट कंपनीज के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी है। बिजली चोरी वाले फीडर्स की बिलिंग की जिम्मेदार प्राइवेट कंपनी होगी। आपको बताते चले, बिजली चोरी वाले 11 केवी फीडर्स खसारे का बाइस बनने लगे हैं। बिजली चोरी वाले 11 केवी के फीडर्स के हवाले से वजारत पावर डिवीजन का अहम फैसला सामने आ चुका है। फैसलाबाद वासा ऑफिस में MD जब्बार अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी कनेक्शन की रोकथाम के लिए अहम इजलास हुआ। DMD अदनान नसार, इकरामुल्ला, डायरेक्टर INC उमर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक हुए। MD वासा की गैर कानूनी कमर्शियल यूनिट्स को कनेक्शन रेगुलर करवाने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन, 1 हफ्ते बाद गैर कानूनी कनेक्शन के हामिल कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ बगैर नोटिस के क्रैकडाउन किया जाएगा। जब्बार अनवर का इस मौके पर कहना था कि कनेक्शंस रेगुलर करवाने के वाले मुतल्लिका सब डिवीजन या फील्ड ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान कनेक्शन रेगुलर करने के साथ साथ भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। अपने कनेक्शन खुद रेगुलर करवाने वालों से जुर्माने की वसूली नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाकशुदा प्राइवेट कॉलेजेस को BS प्रोग्राम की दाखिला मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। पहले से इल्हाकशुदा कॉलेजेस को तौसीद, जबकि नए कॉलेजेस को एफिलिएशन लेटर ना मिलने से BS के नए तलबा दाखिल करने के लिए ताहाल हतमी मंजूरी ना मिल सकी। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, GC यूनिवर्सिटी ने जनवरी में मिड इम्तिहानात का शेड्यूल दे रखा था, लेकिन ताहाल इल्हाक सर्टिफिकेशन ना मिलने से नए बच्चों को ऑनलाइन रजिस्टर ही नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी मामले को फौरी हल करे, इस पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अलहाक शुदा कॉलेजेस के हवाले से अगर बात करें तो उनके मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। अभी तक किसी भी कॉलेज को अलहाक का सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बायस वो मज़ीद बच्चों को इनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो पोर्टल हैं यूनिवर्सिटी से बच्चों को ऑनलाइन रजिस्टर करने के वो ब्लॉक किए गए हैं। इस हवाले से एसोसिएशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस की, उनकी तरफ से डिमांड बारहा यूनिवर्सिटी से की गई कि जल्द अज जल्द उनके एफिलिएशन लेटर उनको जारी किए जाएँ ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई उसका आगाज़ कर सकें। आगाज़ तो तब होगा जब एडमिशन होंगे। चौधरी यूसुफ मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, अभी तक एडमिशन ही नहीं हुए तो पढ़ाई आगाज़ कब होगा? और यूनिवर्सिटी कहती है 31 जनवरी को आप मिड एग्ज़ाम ले लें, कैसे पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस साल जो यूनिवर्सिटी की नई एफिलिएशन कमेटी बनी तो हम बहुत ज़्यादा उसको वेलकम किया प्राइवेट इदारों ने कि उन्होंने बड़े टाइमली विज़िट कर लिए और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस साल जो है एफिलिएशन के लेटर यानी कि एक्सटेंशन के या नए लेटर वो जल्दी जारी कर देंगे।
टाइम पे दाखिले होंगे, पोर्टल टाइम पे ओपन होंगे और सारा सिस्टम एक आइडियल सिस्टम समझा जा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विज़िट हुए को 5 से 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ना तो कोई किसी किस्म के जो ओल्ड केसेस हैं, एक्सटेंशन के केसेस हैं, न्यू केसेस हैं, किसी को भी एक लेटर जारी नहीं किया। लेटर जो कि जारी नहीं हुए तो बच्चों के पोर्टल ओपन नहीं हुए, कॉलेजेस के पोर्टल ओपन नहीं हुए और हम बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके अभी तक। और यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल दिया था वो तो गुजर चुका है। अब यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के मुताबिक तो जो है 31 जनवरी को मिड टर्म एग्ज़ाम भी होने थे, और मिड टर्म एग्ज़ाम तो उस वक्त होंगे जब कोई 6 हफ्ते 8 हफ्ते क्लासें होंगी, लेकिन अभी तक तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस, वहाँ क्लासेस का आगाज़ भी नहीं हुआ। और इवन यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं अपने कैंपस में भी उनकी कॉलेज क्लासेस का आगाज़ नहीं हो सका। तो इस वजह से बीईएस के एडमिशन भी बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं कि हम कब एडमिशन लें, क्लासेस कब शुरू होंगी, तो ये क्लैरिटी नहीं है। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ वीसी साहब। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। मौसम सरमा की वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों में 8 जनवरी तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 जनवरी से 8 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात में तौसी कर दी गई है। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी को खुलेंगे। आपको बताते चले, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 8 जनवरी तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 जनवरी से 8 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात में तौसी कर दी गई है। बात करते हैं जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा तौसी क्यों की गई है छुट्टियों में? जी, अदालत की तरफ से स्मोक कंट्रोल करने के पेश नज़र 1 हफ्ता मजीद स्कूल और तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला सुनाया गया था, जिस पर बिलाखिर पहले कॉलेजेस ने छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया और अभी स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब जो स्कूल हैं पंजाब भर में वो 8 जनवरी तक बंद रहेंगे और तोसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 से 8 जनवरी तक 1 हफ्ते की तोसी दी गई है मौसम सरमा की तातीलात में, जिसके बाद अब तमाम जो तालीमी इदारे हैं पंजाब भर में, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो 9 जनवरी से खुलेंगे। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि तालीमी इदारे खुलने के बाद मास्क की पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और छुट्टियां जो है उसमें 1 हफ्ते की तोसी जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से आज ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलेजेस को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अभी कुछ देर पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पंजाब भर के तालीमी इदारों को 8 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। जी, तालीमी इदारों को 8 जनवरी तक बंद करने का हिदायत जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आपका। मुनर्वा थिएटर फैसलाबाद की बिल्डिंग खतरनाक करार दे दी गई है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इस हवाले से आगाह कर दिया है। मुनर्वा थिएटर फैसलाबाद की बिल्डिंग के सर्वे के अक्टूबर में किया जा चुका है। मुनर्वा थिएटर फैसलाबाद की बिल्डिंग की जिम्मेदारी प्रोप्राइटर की है। मुनर्वा थिएटर फैसलाबाद की बिल्डिंग की बहाली के लिए ग्रांट दरकार है। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुनर्वा थिएटर सिनेमा की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है और महकमा बिल्डिंग काम की जानब से अक्टूबर में जो है वो थिएटर का सर्वे किया गया है और इस थिएटर की जो बिल्डिंग है वो ख़तरनाक करार दी जा चुकी है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी आगाही दी जा चुकी है और इस मसला के मुताबिक जो है वो इस थिएटर की तमीर व मरम्मत के लिए ग्रांट दरकार है। फौरी तौर पर जो है वो सिनेमा की जितनी भी सरगर्मियां हैं वो रोक कर जो है वहाँ के बहाली और तमीर व मरम्मत के काम जारी करने के अहकामात जो है वो सदद किए गए हैं। उसके साथ साथ महकमा बिल्डिंग काम के मुताबिक जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो थिएटर इंतज़ामिया और थिएटर के प्रोप्राइटर की है और बिल्डिंग को और शायकीन को किसी भी नागहानी सूरत से बचाने के हवाले से जल्द मुनर्वा थिएटर सिनेमा की तमीर व मरम्मत के काम जारी किए जाएँ और साथ साथ जो है बिल्डिंग काम की जानब से डिप्टी कमिश्नर। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। आईजी पंजाब की हिदायत पर आरपीओ सरफराज फुल्की की एहलकारों से मुलाकात। सरफराज अहमद फुल्की ने एहलकारों के मसाइल सुनकर मौका पर हल किया। आईजी पंजाब ने अफसरान को मातहत एहलकारों से मुलाकातों का हुक्म भी दे दिया। सरफराज अहमद फुल्की का कहना था कि फैसलाबाद पुलिस के एहलकार खानदान की तरह हैं। एहलकार बिला झिझक दफ्तर में आकर अपने मसाइल बयान कर सकते हैं।
اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے آئی جی پنجاب ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ریجن کے افسران ماتحتوں کی خوشی غمی میں بھرپور شرکت اختیار کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آئی جی پنجاب کی ہدایت پر RPO سرفراز فلکی کی اہلکاروں سے ملاقات ہوئی۔ سرفراز احمد فلکی نے اہلکاروں کے مسائل سن کر موقع پر حل کر دیے۔ آئی جی پنجاب نے افسران کو ماتحت اہلکاروں سے ملاقاتوں کا حکم دیا۔ سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ فیصل آباد پولیس اہلکار خاندان کی طرح ہیں۔ اہلکار بلا جھجک دفتر آ کر اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے آئی جی پنجاب ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ریجن کے افسران ماتحتوں کی خوشی غمی میں بھرپور شرکت کریں گے۔ فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری منظور پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر اور سابق MNA سعید اقبال کی وفات پر تعزیت کرنے سعید اقبال کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ محروم کے سال ثواب کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری چودھری منظور صاحب، سعید اقبال صاحب جو MNA ہیں، سابق MNA، ان کی تعزیت کے لیے یہاں پہ ان کے ڈیرے پر جو ہے شرکت کی اور یہاں پہ دعائیں ان کے لیے بھی کی گئیں تاکہ ان کو جو ہے ان کے لیے دعائیں فاتحہ کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ سعید اقبال صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے محروم اور بہت ہی اچھے انسان تھے، کیا کہیں گے ان بارے میں؟ جی، سعید اقبال صاحب ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک لمبا رشتہ رہا ہے۔ وہ MNA رہے ہیں، مختلف عہدوں پہ کام کرتے رہے ہیں۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے اور بہت بہادر شخص تھے۔ ہم ہمیشہ ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحب کے لیے، تو بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ عزت بھی بخشی تھی کہ وہ ایک ڈویژن کو لیڈ کریں۔ انہوں نے کمانڈ کیا، اپنی صلاحیت کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ آج میں یہاں پہ فیصل آباد اتفاق سے آیا تھا تو میں ان کے ہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فیملی، ان کے بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ہیں اور بہت گمبھیر مسائل ہیں اس وقت۔ اگر عمران خان رہتے تو پاکستان اپریل یا مئی میں ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ اس ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ سارا بوجھ جو IMF اور باقی کہتے ہیں کہ وہ نہیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی۔ لیکن ایک بات جو میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، اس ملک کے غریبوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اس ملک کی رولنگ کلاسز، حکمران طبقات، وہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی جاگیردار، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ عدلیہ، نہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لے دے کر عوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا گراف ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایسے ادوار کئی بار آئے ہیں۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اس وقت بھی ایک برا دور تھا۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو جب نکالا گیا تو محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس تو ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں۔ آج تو پھر ہمارے پاس بہت بڑی میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اس وقت پھر، اور چونکہ آج کل وہی ہوتا ہے کہ آج کل وہ صرف کرکٹ کی زبان میں باتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل ٹرمینالوجی تو رہ کوئی نہیں گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو بیڈ پیچ سے نکل کر پھر۔ بہت شکریہ مریم رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔